Good morning, good afternoon, all. Am I audible? Yes? Yes, ma'am. Okay. I hope all are safe at home. Okay. Now we will start with the day 2 of the session on C language. Yesterday you have studied about what is there. Keywords are there, input output statement, variable. Okay. Now henceforward we will revise this topic first and then we will see the programs on it and proceed further for if and else statement. Okay. Before that, I am Suchita Wankhede, Assistant Professor from Trinity College of Engineering and Research, Pune. Now, day 2 of the C language. Today's topics are conditional statements. In that, you have to study the simple if else, and the practical on ATM menu logic. In yesterday's lecture, you have studied about data types. Okay, what are the input statement? What are the outputs statement and the structure of C program. So we will revise first. Okay, हम लोग ये पहले रिवाइज करते हैं जो भी कल के टॉपिक है. ओके, नाउ डेटा टाइप्स. ये डायग्राम आपने कल देखी है ना. व्हाट इज दिस डायग्राम सेज द बेसिक डेटा टाइप्स. प्राइमरी डेटा टाइप्स आर देयर. ठीक है, डेटा मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा. डेटा इज अ सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. यस, क्लियर दिस पॉइंट. डेटा का मतलब क्या होता है कि कोई इंफॉर्मेशन है. जैसे स्टूडेंट इज देयर, स्टूडेंट रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है. स्टूडेंट इज हैविंग नेम, उसके बाद उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स, ये हो गई स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन. यही इंफॉर्मेशन अगर मुझे कंप्यूटर में स्टोर करनी है तो हाउ आई कैन स्टोर यूजिंग दीज डेटा टाइप्स. दीज आर द प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स. ओके, क्लियर दिस पॉइंट. जैसे मैं क्लियर दिस पॉइंट या फिर गॉट इट दिस पॉइंट तो तुम लोग मैसेज चैट बॉक्स में पुट करते जाओ यस नो. ठीक है, सो आई कैन अंडरस्टैंड. So basic data types of what is there? Integer, which is the signed and unsigned type, divided into two, sign and unsigned. Sign and unsigned मतलब क्या? अगर मैं sign and unsigned की बात करती हूँ, इसका मतलब क्या कि suppose -1 is there, so we can say it is having the sign that is a negative sign. Okay, and +1 भी करती हूँ, so it is having what? Sign data. This is called the sign data because it is having a some sort of sign that is positive or negative number. Okay, and simple 1 2 type करती हूँ तो this is we can say unsigned data. ठीक है, so this is all about sign and unsigned. ठीक है, तो इसके अगेन सब पार्ट है, integer, short int, long int. Unsigned के भी int, short int and long int. Okay, the floating point, float double and long double is there. कैरेक्टर में कैरेक्टर, साइन कैरेक्टर एंड अनसाइन कैरेक्टर, इस तरीके से उसको डिवाइड किया है. ठीक है, ये कल आपको. हेलो, माय वॉइस इज नॉट क्लियर. सोहम, हेलो. Clear, madam. Audible. Audible. Your voice is Yes, ma'am. audible. Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके. So this is what different basic data types. Okay, now next output statement are there. Okay, so how to syntax of output statement is what? Printf and inside a bracket डबल कोटेशन के अंदर तुम लोगों को मैसेज टू बी डिस्प्लेड प्रिंट करना है. इट्स लाइक व्हाट, सपोज यहां पे मैं टाइप करती हूं प्रिंट printf and inside a double quotation mark, this is called the codes. शिफ्ट और साइन है वहां पे तुम लोगों के कीबोर्ड पे. ठीक है, तो यू कैन प्रेस शिफ्ट एंड दिस बटन. ओके, नाउ इन डबल कोटेशन मार्क यू हैव टू प्रिंट द स्ट्रिंग. String, double quotes complete and round brackets complete and semicolon. This is the syntax. अब syntax का मतलब क्या है? What do you mean by syntax? कि हम लोगों के कुछ रूल स्पेसिफाइड रहते, कोई भी लैंग्वेज के कुछ रूल स्पेसिफाइड रहते, वो रूल को हम लोगों को उसी तरीके से लिखना होता है. सो वी कैन से इट इज अ सिंटैक्स. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? सिंटैक्स.
वन ऑफ द रूल स्पेसिफाइड कि हाँ ये रूल, अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है ऑन टू द स्क्रीन, तो मुझे उसको सी लैंग्वेज में अगर लिखना है तो आई कैन राइट द कीवर्ड और यू कैन से द फंक्शन दैट इज कॉल्ड द printf is there, and round brackets in double quotation mark you have to type the string and after that semicolon is must. Okay, दूसरा टाइप है सिंटैक्स का printf. Okay, and double quotation string is there, string double quotes complete and comma variable and semicolon. Okay, ये किस लिए, अगर मुझे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे चाहिए तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं. तो ये क्या है वेरिएबल, कैसे उसकी वैल्यू मिलती है, ये हम लोग आगे देखेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटपुट स्टेटमेंट. नाउ सी हियर द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज देयर, comma the variable name, or you can say the string format specifier and the variable name is there. So this is the syntax, मतलब रूल है ये. Clear this point? Now next is what? The input statement. Input statement के लिए फिर से मेरे पास कौन सा अवेलेबल है, that is a scanf function is available in C language. Okay, so format specifier, what is the syntax of this? You can type scanf, okay, and in a double quotation mark you have to type format specifier. Format specifier and after that comma देके variable सेमीकोलन. ये सिंटैक्स है. यहाँ पे देखो कॉमा भूलना नहीं है तुम लोगों को, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स भूलना नहीं है, डबल कोट्स भूलना नहीं है, क्योंकि ये उसका सिंटैक्स है. इसमें से एक भी तुम लोगों ने गलती की तो इट विल गिव्स यू एरर. ओके, कंपाइलर विल गिव्स यू एरर. So this is what about the input statement. Now next input output program diagrammatically देखते हैं कि how it will work with the input output devices. अब मुझे बताओ input output devices कौन से हैं? कीबोर्ड इज देयर, मॉनिटर इज देयर, है ना. और मॉनिटर को क्या कहेंगे हम लोग? आउटपुट डिवाइस. क्यों उसको आउटपुट डिवाइस कहेंगे? क्योंकि वहां पे हम लोग सिर्फ क्या आउटपुट है या फिर कौन सा प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है इसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, है ना. एंड कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस कहेंगे. क्यों इसे इनपुट डिवाइस कहेंगे? क्योंकि फ्रॉम दिस वी कैन सी व्हाट इज देयर, टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं. कीबोर्ड से तुम लोग 1 टाइप करोगे तो वो 1 किसको जाता है? प्रोसेसर को जाता है, मतलब ही कंप्यूटर को जाता है. तो यू कैन सी इन अ डायग्राम व्हाट इज इन अ डायग्राम. स्टैंडर्ड इनपुट लाइन, इनपुट statement is there, arrow from the keyboard is there, we can say this is the keyboard. यहाँ से arrow जा रहा है scanf statement के लिए. and printf, printf से arrow कहाँ पे जा रहा है? monitor की तरफ. okay, और ये printf and scanf statement किसके अंदर रहते? it is inside a void में. ठीक है, are you understood? this diagram is clear to all? yes. now next, कल प्रीवियस लेक्चर में यस स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज देखा था तुम लोगों ने. तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज व्हाट इज देयर? फर्स्ट यू हैव टू इंक्लूड व्हाट इज देयर? हेडर फाइल. ठीक है, सी दिस वन, हेडर इज देयर. और हेडर कौन सा? हैश इंक्लूड stdio.h. ओके, व्हाट इज दिस stdio.h? इट इज द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. ठीक है, इसका मतलब क्या? कुछ लाइब्रेरी फाइल्स रहती है कंपाइलर में प्रीडिफाइंड, वो सिर्फ हम लोगों को यूज करना है यूजिंग अ इंक्लूड स्टेटमेंट देयर, यूजिंग दिस इंक्लूड. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास रेडीमेड कुछ फाइल्स अवेलेबल है कंपाइलर के पास, दैट इज stdio.h. दिस इज फॉर द इनपुट आउटपुट. ओके, सो we can include that in our main program. And inside stdio.h, what is there? printf statement is there, और the you can say the scanf statement is there. ये दोनों स्टेटमेंट ये stdio.h फाइल के अंदर इंक्लूड है. ये फंक्शंस है, ये फंक्शन सारे इंक्लूड है. अब फंक्शन मतलब क्या
है ना। अब मैंने यूज किया है वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या कि इट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ओके, इट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट which is used to execute some specific task, okay. So what this we can say, it is a block of statement which having some task. अब हम लोगों के पास कौन सी टास्क है, मैंने क्या कहा था, प्रिंटफ स्टेटमेंट। प्रिंटफ स्टेटमेंट का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रिंटफ स्टेटमेंट, द वर्क इज व्हाट, टू प्रिंट द मैसेज ऑन टू द स्क्रीन, ओके। एंड स्कैनफ का मतलब क्या है कि हम लोगों को यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करना है, और ये दोनों फंक्शन जो है वो हेडर फाइल के अंदर रिटर्न है, उसका वर्क जो है वो प्री डिफाइंड इस हेडर के अंदर लिख के है। अब एक का मैसेज आया था, व्हाट इज दैट, हेडर फाइल कैन बी अ सेम। अगर मुझे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इंक्लूड करने हैं तो आई कैन पुट द हेडर फाइल एज अ stdio.h। इसके अलावा बहुत सारे हेडर फाइल है, प्री डिफाइंड है, जैसे math.h फाइल इज देयर व्हिच इंक्लूड व्हाट, मैथमेटिकल फंक्शन, स्क्वायर फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो मैं math.h इंक्लूड कर सकती हूँ। तो इट डिपेंड ऑन द प्रोग्राम्स, ओके। Now next is what is that, main. You have to start your program with the main part. This is the main function. अब यहाँ पे फिर से मैंने function बोला है, तो function का मतलब क्या है, what is the meaning of the function? It is a block of statement to execute a specific task. अब main function का काम क्या है, compiler execute the program from the int main part, okay. Now after that what is there, after this वेरिएबल डिक्लेरेशन इज देयर। कल तुम लोगों ने वेरिएबल क्या है ये भी पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल इज देयर। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, वेरिएबल इट इज अ, यू कैन से कंटेनर which is used to store the data, okay. So you have to declare variable likewise int a equals to 10 एंड जो भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, बेसिक डेटा टाइप दैट इज फ्लोट, उसके बाद लॉन्ग इंट, है ना, उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग तुम्हारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, वेरिएबल डिक्लेरेशन होने के बाद हमेशा क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ योर वर्ड एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन, ठीक है। तो इसका मिला के बॉडी ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे, और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ स्टेटमेंट आर देयर, और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आगे हम लोग देखते जाएंगे। सो वी कैन से इट इज द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम एंड आफ्टर दैट द रिटर्न स्टेटमेंट इज देयर, ठीक है। So this is all about what the structure of the program. Clear this point? Yes? Okay. Now next topic is what? Computer work on the 4 stages. What are the 4 stages? Input क्या है, output क्या मिलने वाला है, and input के accordingly हम लोग processing क्या करने वाले हैं, and data कहाँ पे store करने वाले हैं. Okay? What is there? हमेशा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जैसे ये सी लैंग्वेज है, ये सी लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को कोई तो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है सपोज, है ना, या फिर खुद के प्रोग्राम्स लिखने हैं, खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो वी कैन यूज दिस। उसी का एक पार्ट है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में तुम लोग खुद का प्रोग्राम लिख सकते हो, है ना। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, कैलकुलेटर तुम लोगों ने यूज किया है, यस। अब कैलकुलेटर के जो फंक्शन है दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यस, ये सारे फंक्शन प्री डिफाइंड है, हम लोग सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। मतलब मैं क्या कर लिखती हूँ सिर्फ, अगर मैंने ये कैलकुलेटर यूज किया, ओके, आई विल शो द कैलकुलेटर पार्ट, ओके। कैलकुलेटर में सपोज मैंने 1+2 किया, अब 1+2 मतलब क्या, एंड इक्वल्स टू किया, इसका मीनिंग क्या है, हम लोगों ने 1 एज ए इनपुट लिया, 2 एज ए इनपुट लिया, और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब प्रोसेस किया 2, एंड इक्वल्स टू साइन से रिजल्ट जनरेट किया। व्हाट इज द रिजल्ट, 3 रिजल्ट इज देयर। सिमिलरली प्रोसेसर में भी इसी तरह की प्रोसेसिंग होती है, इन अकॉर्डिंग टू इनपुट एंड आउटपुट, ओके। एंड कहाँ पे ये रिजल्ट जाता है, मतलब ये 3 कहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। Now next is what?
सी लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? यही छोटे छोटे जो हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं उनको डेवलप करने के लिए या फिर खुद के प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए यू कैन यूज द दिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सो इन कंप्यूटर वर्क ऑन 4 stages, that is input, output, processing and memory. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर तुम लोगों को सीखनी है तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये चारों स्टेजेस पे डिपेंड रहती है. इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और प्रोसेसिंग क्या है एंड मेमोरी क्या है. Now we can see diagrammatically, अगर this is your processor, see my arrow is there, प्रोसेसर मतलब ही कंप्यूटर इज देयर. नाउ कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस इज देयर. इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया. अगर किसी ने पीसी देखा भी नहीं होगा, उनके पास अगर स्मॉल मोबाइल फोन होगा तो यू कैन सी जो भी आप कीबोर्ड है आपके मोबाइल फोन से जो टाइप करते हो वी कैन से इट इज अ कीबोर्ड, है ना. इनपुट डिवाइसेस दे रहे. अगेन मोबाइल फोन में प्रोसेसर रहता है, ठीक है. सो दिस इज प्रोसेसर. ओके, और यू कैन से द पीसी. नाउ आउटपुट डिवाइसेस मतलब क्या? अगर तुम लोगों के पास स्मार्टफोन है तो तुम्हारी स्क्रीन जो है टच स्क्रीन इट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. ओके, एंड अगर हम लोग पीसी की बात करते हैं तो मॉनिटर वी कैन से इट इज अ आउटपुट डिवाइसेस. उसके बाद प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस. ओके, उसके बाद मेन मेमोरी पार्ट इज देयर. मेन मेमोरी जहां पे हम लोग प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं. एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिलरी स्टोरेज? इट इज नॉट सेकेंडरी टाइप ऑफ मेमोरी. मतलब जैसे अगर मोबाइल फोन तुम्हारा लेते हो तो इनसाइड योर मोबाइल फोन मेमोरी कार्ड इज देयर, ठीक है. मतलब एक्सटर्नल कोई डिवाइस है तो वी कैन से इट इज ऑक्सिलरी स्टोरेज. और वही अगर हम लोग सीपीयू की बात करते हैं या फिर तुम्हारा पीसी या फिर लैपटॉप की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क उसमें रहती है. तो हार्ड डिस्क वी कैन से इट इज ऑक्सिलरी स्टोरेज. क्लियर? यस ऑल ऑफ यू. SIM card is not a we can say it is a internal storage कह सकते हो. बट एक्सटर्नल स्टोरेज भी कह सकते हो क्योंकि सिम कार्ड में कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सेव रहते हैं, है ना. वी कैन सेव कॉन्टेक्ट नंबर इन सिम कार्ड बट उसकी मेमोरी स्मॉल रहती है सिम कार्ड की. ओके, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में आ सकता है क्योंकि जब भी तुम लोग मोबाइल फोन लेते हो उसके साथ सिम कार्ड नहीं आता. सिम कार्ड तुम लोगों को अलग से डालना पड़ता है ना. ये सिर्फ एग्जाम्पल बताया. अभी किसी किसी के पास पीसी रहता है, किसी के पास नहीं रहता है, तो अकॉर्डिंगली दैट एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया आपको. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू. नाउ इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉरी वी कैन से प्रोग्राम देखते हैं. सिंपल इनपुट आउटपुट प्रोग्राम ऑन सी लैंग्वेज. ठीक है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग सी प्रोग्राम्स? सी प्रोग्राम कहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं? कल देखा ना आप लोगों ने. क्या टाइप करना है मुझे? ऑनलाइन सी compiler. Yes, click on the first link, that is onlinegdb.com. Now here you can type your program. Okay, और whatever the output is there आप लोगों को ये इनपुट स्क्रीन में दिखेगा या फिर यू कैन से कंसोल स्क्रीन में दिखेगा. Now first program is what? What is the first program? Write a program for the variable or constant. Okay, variable or you can say the constant. We will see this program. Start the program with what? Hash include stdio.h. Why it is stdio.h? Because we are using printf and scanf statement here. Okay, that's why we are including the definition of printf
एंड द स्कैनफ, उसका काम क्या है ये मैं कंपाइलर को पता होना चाहिए. वी कैन से दिस इज योर कंपाइलर, और इसको पता होना चाहिए एग्जीक्यूट करने के बाद कि printf का मीनिंग क्या है, scanf का मीनिंग क्या है. फॉर दिस पर्पज वी आर यूजिंग #include stdio.h. अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हम लोगों को एक स्मॉल प्रोग्राम लिखना है फॉर द वेरिएबल. ओके, सो वी विल राइट द प्रोग्राम. अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 4 स्टेप्स कौन सी हैं. ठीक है, व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ द कंप्यूटर टू बी परफॉर्म ऑन द वेरिएबल. प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज द प्रोग्राम. आई विल कॉपी दिस वन. What is the program? Write a program for the variable. Okay. अब यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल के लिए प्रोग्राम लिखना है. तो अकॉर्डिंग टू अवर कंप्यूटर वर्क ऑन 4 स्टेजेस. तो इनपुट क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द इनपुट देयर. आफ्टर दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई आउटपुट क्या रहने वाला है. ओके, आफ्टर दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई प्रोसेसिंग क्या होगा. ओके, और मेमोरी. ओके, ये 4 स्टेप रहती है हमेशा जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो वी रिक्वायर दिस 4 स्टेप्स. ओके, अब इनपुट हमारे प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, राइट अ प्रोग्राम फॉर द वेरिएबल. वेरिएबल के लिए प्रोग्राम लिखना है मुझे, मतलब क्या, मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर चाहिए. सपोज मैं लेती हूँ a इज द वेरिएबल. ओके, आफ्टर दैट आई नीड टू असाइन सम वैल्यू टू a वेरिएबल. ओके, मतलब क्या असाइन करना, मतलब क्या, उसको कुछ वैल्यू देनी है, मुझे स्टोर करनी है ये वैल्यू. दिस इज अबाउट व्हाट, मेमोरी. ओके, मतलब क्या, मेमोरी लोकेशन में आई नीड टू पुट द वैल्यू टू फॉर द ए वेरिएबल. उसके बाद ये जो वेरिएबल है उसको मुझे प्रिंट करना है. ठीक है, प्रिंट ए. ओके, तो ये मेरे 4 स्टेप्स हो गए, है ना. यस और नो, व्हाट इज देयर. हम लोगों ने एक इनपुट लिया a, उसको एक वैल्यू असाइन की. ओके, आउटपुट मुझे मिलने वाला है प्रिंट a, एंड मेमोरी में असाइन करनी है वैल्यू. मतलब क्या, a इक्वल टू 5 क्या, मतलब ही मेमोरी में वैल्यू असाइन हो गई. ओके, नाउ सिमिलरली यू कैन टाइप हियर. अब मुझे a जो वेरिएबल डिक्लेयर करने वाली हूँ वो कौन से टाइप का होना चाहिए, है ना. उसका कुछ टाइप होना चाहिए ना. जो जितने भी हम लोगों ने बेसिक डेटा टाइप्स पढ़े, दैट इज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, तो उसका टाइप मुझे डिसाइड करना पड़ेगा पर्टिकुलर वेरिएबल का. सो आई कैन डिसाइड द टाइप कि मुझे इंटीजर वेरिएबल चाहिए सपोज. तो हाउ टू डिक्लेयर द इंटीजर वेरिएबल, टाइप INT, इंट स्पेस, स्पेस देनी है, आफ्टर दैट a सेमीकोलन. ये सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन का. यू हैव टू टाइप इंट a. ओके, आफ्टर दैट मेमोरी में वैल्यू स्टोर करनी है इसकी. तो a इक्वल टू मैं 5 स्टोर करती हूँ. ओके, a इक्वल टू मैंने 5 स्टोर किया. आफ्टर दैट आई नीड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस a, दैट इज 5. ये पता है मुझे a की वैल्यू 5 है, पर कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है. मुझे कंप्यूटर को बताना है कि a की वैल्यू 5 है और वो मुझे प्रिंट चाहिए स्क्रीन के ऊपर. स्क्रीन के ऊपर प्रिंट चाहिए मतलब क्या, ये जो इनपुट बॉक्स दिख रहा है ना जहां पे मेरा कर्सर है, वहां पे मुझे 5 लिख के आना चाहिए. ठीक है, तो फॉर दैट पर्पज कौन सा हम लोग स्टेटमेंट यूज करते हैं, स्कैनफ की प्रिंटफ. type inside a chat box. Yes, it is a printer, so you have to type what is there, print app statement. Okay, after that in a double quotes क्या लिखना है मुझे, वैल्यू ऑफ a is equals to, after that you have to provide a format specifier there, %d. ठीक है, these are the format specifier. मतलब क्या, ये a वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप है, ये किससे पता चलेगा, दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो %d से वैल्यू लेगा, है ना. नाउ आफ्टर दैट कॉमा एंड %a. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड द सेमीकोलन देयर. अब ये %d क्या है एंड a क्या है, % क्या है, दिस % साइन इज देयर. ठीक है, ये क्या है मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगी बाद में, डायग्रामेटिकली उसको एक्सप्लेन करूंगी, तो अच्छे से तुम लोगों को और लॉजिक समझ में आएगा. पहले हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं. हाउ टू रन द प्रोग्राम, गो टू द ग्रीन कलर बटन.
and run. एक मिनट, हाँ उसने वैल्यू नहीं ली. एड्रेस लिया उसने एक्चुअली. यू हैव टू नॉट प्रोवाइड हियर एम्परसेंड. एम्परसेंड हमेशा हम लोग स्कैनएफ जब लिखते हैं ना तब प्रोवाइड करते हैं. टाइपिंग मिस्टेक इज देयर, एम्परसेंड. ठीक है, इट इज रिलेटेड विद द scanf statement. So you can see inside of this the value of a is what 5. Okay, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं. You can see inside the input what is there, the value of a is what 5. अब यहाँ पे मैंने एम्परसेंड लिया था, है ना, यहाँ पे एम्परसेंड लिया था. See this line number 6. Okay, value of a is परसेंट डी एम्परसेंड a हम लोगों ने लिया था एंड मैंने रन किया था प्रोग्राम. सो इस तरीके से कुछ वैल्यू लिख के आई थी. दिस वन, दिस इज एक्चुअली द मेमोरी लोकेशन, मतलब उसने डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट की. ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या है मैं बाद में समझाती हूँ तुम लोगों को. सिर्फ अभी इतना याद रखो, विद द प्रिंट स्टेटमेंट यू हैव टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड द वेरिएबल नेम, कॉमा करके वेरिएबल नेम लिखना है सिर्फ. ठीक है, एम्परसेंड इज एसोसिएटेड विद द स्कैनएफ स्टेटमेंट. क्लियर दिस पॉइंट? क्लियर दिस वन? Now, suppose I want to accept, same program is there, but I want to accept the value of a from the user. ठीक है, जो हमारा second है. This write a program for the variable, but I want to accept the value from what is the user. Okay. अब user से value accept करनी है, मतलब मुझे क्या लिखना है? Again, हम लोग नोटपैड पे आते हैं. ठीक है, write a program for the variable and accept value from user. User मतलब programmer. Okay. Now फिर से depending on these 4 steps क्या लगेगा मुझे? अगेन एक वेरिएबल लगेगा. सपोज हम लोग और कंसिडर करते हैं ए वेरिएबल. ओके, नाउ ए के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे 5 असाइन किया था, ये ना करते हुए हम लोग क्या करने वाले, वी कैन यूज द स्कैनएफ स्टेटमेंट देयर. ठीक है, मतलब इनपुट के लिए कौन सा अवेलेबल स्टेटमेंट है, स्कैनएफ. आफ्टर दैट प्रिंट स्टेटमेंट. ओके, व्हेनेवर वी आर यूजिंग दिस स्कैनएफ स्टेटमेंट, अल्टीमेटली ये स्कैनएफ स्टेटमेंट का काम क्या है, यूजर से डेटा लेना और मेमोरी में स्टोर करना. ओके, और उसके ऊपर प्रोसेस करना, डेटा के ऊपर प्रोसेस करना. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए मुझे मेरे पास क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट इज देयर. ओके, सो वी विल सी दिस हियर. सिंपल, declare int a. Okay, declaration, how to declare, start with the data type name, that is integer, space देनी है a and semicolon. ये अगर नहीं करते तुम लोग, स्पेस वगैरह नहीं देते, तो मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ. इसका क्या आता है, एरर आती है. व्हाट इज द एरर, यू कैन सी int a अनडिक्लेयर्ड. ठीक है, मतलब क्या, इसका कंपाइलर को इसका मीनिंग नहीं मिल रहा, क्या है int a, है ना. तो व्हाट इज द सिंटैक्स, यू हैव टू प्रोवाइड space here. Now after that accept the value from the user. So यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करती हूँ, print f. What is the message say, enter the value of a. Enter the value of a. ये सिर्फ मैसेज डिस्प्ले होगा. After that you have to use scanf.
स्कैनर क्या है सिंटेक्स इसका? फॉर्मेट स्पेसिफायर. व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द इंट? What is the format specifier for the int? It is a %d. Yes, it is what? %d, comma ampersand लिखना है मुझे a. ठीक है, ampersand a लिखना है. ठीक है, and after that you need to print the value of a. क्या है? यूजर से जो वैल्यू तुम लोगों ने ली है उसका रिजल्ट क्या डिस्प्ले होगा. ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू क्या है a के अंदर. रन दिस प्रोग्राम. नाउ यहाँ पे देखो एरो ब्लिंक हो ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है. यस, एंटर द वैल्यू ऑफ ए. ये मैसेज प्रिंट हुआ. अगर मैं ये प्रोग्राम इसके साथ आउटपुट के साथ को रिलेट करती हूँ तो व्हाट इज देयर? प्रिंट एफ के अंदर एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये लिख के आया और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है. ये क्यों? बिकॉज ऑफ दिस स्कैनएफ स्टेटमेंट. इट इज हो कंपाइलर जो है वो होल्ड कर रहा है कि कोई कीबोर्ड से वैल्यू प्रेस करे. तो यहाँ पे जब तक मैं वैल्यू प्रेस नहीं करती वो नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड नहीं होगा. सो आई विल प्रेस 12. ठीक है, मैं 12 डालती हूँ एंड इसके बाद एंटर दबाना है. एंटर के बाद क्या आ रहा है? द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट? 12. तो यहाँ पे देखो मैसेज लिख के आया द वैल्यू ऑफ ए इज %d की जगह क्या आया? देखो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये पूरा लिख के आया. आफ्टर दैट %d लिखा मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कर रहा है? वॉट एवर द वैल्यू इनसाइड ए वो किसके अंदर लेता है? यहां पे ले लेता है. ठीक है, %d. तो कौन सी वैल्यू है उसके अंदर? 12. तो 12 यहां पे डिस्प्ले हो गई है ना. क्लियर दिस पॉइंट? ऑल ऑफ यू क्लियर दिस पॉइंट? नाउ अगेन उसको और अच्छे से समझाने के लिए आई विल टेक द एग्जाम्पल कि कैसे वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उसके साथ कौन से वैल्यू कनेक्टेड रहती है ना. सो सपोज दिस वन ब्लॉक इज देयर, दिस वन ब्लॉक इज देयर. मतलब एग्जैक्टली तुम लोगों को वेरिएबल का मीनिंग समझ में आएगा कि क्या रहता है वेरिएबल, है ना. हम लोग वेरिएबल वेरिएबल कर रहे हैं पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. ओके, सो कंसिडर दिस 2 ब्लॉक और यू कैन से कंसिडर ओनली 1 ब्लॉक क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एक ही इनपुट लिया है दैट इज फॉर ए, वेरिएबल ए. नाउ जब भी मैं इनपुट लेती हूं यूजर से या फिर डायरेक्टली वैल्यू असाइन करती हूं, ठीक है, लाइकवाइज ए इक्वल्स टू 5 या फिर दूसरी केस में हम लोगों ने क्या लिया था? स्कैनएफ in a double quotes you have to type %d डबल कोट्स कंप्लीट, है ना. उसके बाद कॉमा देके % यूज किया था a. ओके, और इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था? a को डिक्लेयर्ड किया था. सो कौन से टाइप से? इंटीजर टाइप a. क्लियर दिस पॉइंट? गॉट दिस पॉइंट? ओके, सो व्हाट इज दिस? a is of what? इंटीजर टाइप. उसकी वैल्यू है 5 और स्कैनएफ एक हम लोगों ने लिया था पहले वाला प्रोग्राम में a की वैल्यू 5 है और दूसरे वाले प्रोग्राम में एक्सेप्ट की थी यूजर से. ओके, सो जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर यू कैन से असाइन करते हैं वैल्यू वेरिएबल को. असाइन करना मतलब क्या? पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में वैल्यू को स्टोर करना. और वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड द वैल्यू, है ना. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल? वेरिएबल इज द कंटेनर विच होल्ड द वैल्यू. ठीक है, सो वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज योर मेमोरी स्पेस. ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो दिख रहा है ना, दिस इज द मेमोरी स्पेस. ओके, अब इसको को रिलेट करना है एग्जाम्पल के साथ. हाउस का एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारा घर है ना, योर होम इज देयर. ठीक है, अब होम में तुम लोग रहते हो. यस, तुम्हारे घर का कुछ नाम होगा. योर हाउस इज हैविंग सम नेम इज देयर, है ना. आफ्टर दैट हाउस का कुछ एड्रेस रहेगा. यस,
You are having the address for the house. Yes or no? Similarly, इनसाइड अ मेमोरी लोकेशन अगर मुझे कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है, मेमोरी लोकेशन मतलब क्या, हार्ड डिस्क है ना, या फिर मेन मेमोरी पार्ट, ओके, उसके अंदर मुझे कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है, तो उसके साथ भी तीन चीजें कनेक्टेड रहती है. थ्री थिंग्स आर देयर. फर्स्ट इज व्हाट, उसका नाम क्या है, मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है. सेकेंड थिंग, एड्रेस क्या है मेमोरी लोकेशन का. एंड थर्ड थिंग इज व्हाट इज द वैल्यू इनसाइड दैट मेमोरी लोकेशन. इट इज सिमिलर टू योर हाउस. ठीक है, तुम लोग जहां पे रह रहे हो वो हो गया तुम्हारी वैल्यू, मतलब यू आर देयर. सो यू कैन से 1 BHK या फिर 2 BHK या फिर बंगलो इज देयर, उसके अंदर तुम लोग कितने लोग रह रहे हो वो हो गई वैल्यूज. ठीक है, हाउस का नाम है, कुछ नाम है तुम्हारे घर को. ठीक है, ओम निवास, शांति निवास, ओके, एंड आफ्टर दैट उसका कुछ एड्रेस है. यस, जैसे वारजे पुणे, दिस इज द एड्रेस ऑफ हाउस, है ना. सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों को क्या देना है, इसके साथ रिलेटेड रहता है एड्रेस. ठीक है, ये रहता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर. ठीक है, सो हम लोग एज्यूम करते हैं कि 1000 एड्रेस है. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट उसको नाम रहता है, मेमोरी लोकेशन को नाम रहता है. व्हाट इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन, कंपाइलर ने नाम क्या दिया है उसको, ए. The name given to the memory location is A. Okay, and what is the value inside this one, वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो क्या असाइन किए हम लोगों ने, 5 असाइन किए. सो वैल्यू इसके अंदर क्या है, 5. ओके, मतलब दिस इज द मेमोरी लोकेशन वेयर you have given the name that is A, मतलब कंपाइलर गिवन द नेम टू द मेमोरी लोकेशन दैट इज A, उसका एड्रेस है 1000. ओके, और वैल्यू उसके अंदर की है 5. सो %d जब हम लोग लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो %d हमेशा ये वैल्यू के साथ रिलेटेड रहता है. ओके, मतलब ये क्या करेगा, एक तो वैल्यू लेगा या फिर डिस्प्ले करेगा. एंड एम% जो है ना, दिस एम% इज देयर, एम% साइन. ठीक है, तो ये रिलेट रहता है विद दिस एड्रेस दैट इज 1000. ओके, सो दिस इज व्हाट द एड्रेस गिवन. वो एड्रेस क्या है तुम्हारे ये मेमोरी लोकेशन का, 1000. ठीक है, सो अगर इसको और अच्छे से समझना है तो आई कैन, जैसे मैंने यहाँ पे परसेंट लिखा था, है ना, %A, तो ये क्या कर रहा था, %A अगर किया था तो, और उसको अगर हम लोगों ने रन किया, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, मैं 12 लिखती हूँ, तो अभी मेरे पास 12 डिस्प्ले होना चाहिए, पर 12 डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पे. देखो, it is displaying value of A is what, this one. Why this is so, because this is what the address for the memory location, जिसका नाम क्या है, A है. समझा, क्लियर दिस पॉइंट, ऑल ऑफ यू क्लियर. टाइप इनसाइड द चैट बॉक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम. नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, कांस्टेंट के लिए राइट अ प्रोग्राम. लाइट गई है मेरे यहाँ पे, तो मैं मोबाइल से तुम लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ. लैपटॉप रिक्वायर्ड वाईफाई कनेक्शन, और लाइट ना होने के कारण आई डोंट नो कितना तुम लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगा.
स्क्रीन विजिबल है मेरी? पूर्णिमा मैम स्क्रीन विजिबल आहे? हा मॅडम विजिबल आहे. मोबाईलवरची, हो कारण हो लाईट गेली आहे मोबाईलचा. इथे. हो हो मोबाईल. मोबाईलचा विजिबल आहे. ओके ओके ठीक आहे चालेल. ओके. सो वी विल कंटिन्यू विथ व्हाट इज देयर? कांस्टेंट. कांस्टेंट के लिए मुझे क्या लिखना है? कांस्टेंट मतलब क्या कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम. वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू. सो आई विल डिक्लेयर द वन कांस्टेंट इंट a which is equals to, suppose मैं लेती हूँ 5, और इंस्टेड ऑफ दैट आई विल डिक्लेयर पाई कांस्टेंट. वो अच्छे से समझ में आएगा तुम लोगों को. पाई which is equals to, we can say 5. Okay, not, it is not a 5, it is a 3.14. 3.14. ठीक है, ये हम लोगों ने डिक्लेयर किया. नाउ आई नीड टू प्रिंट दिस पाई वैल्यू. ओके, सो प्रिंट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी? पाई वैल्यू is double quotes complete, bracket complete, double quotes complete, bracket complete, and after that कॉमा देके क्या लिखना है मुझे? पाई. Okay, so you can see what is the result of this. ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दिखा. कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है इसको? फ्लोट लेती हूँ बिकॉज 3.14 इज देयर ना, सो यू कैन यूज द फ्लोट देयर. कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है फ्लोट के लिए? ये %f. So output is what? int main float pi 3.14. So हम लोगों ने यहाँ पे ये 3.14 कांस्टेंट डिक्लेयर किया है. अब कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए और एक कीवर्ड है इन अ सी लैंग्वेज, दैट इज कॉन्स्ट. कॉन्स्ट करके कीवर्ड है. ठीक है, अगर मुझे कोई भी कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, कांस्टेंट मतलब क्या? जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी. ठीक है, सो व्हाट टू राइट? कॉन्स्ट फ्लोट pi 3.14. Now printf pi value is %f and now run this program. So you can see the result of pi value is what? 3.14. Okay, now I want to change this value. I am trying to change this value. So pi which is equals to, मैं suppose assign करती हूँ 2. ठीक है, ये constant है. pi जो वेरिएबल है वो हम लोगों ने constant डिक्लेयर किया है, बट आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस वैल्यू. तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट मिलता है तुम लोगों को. नाउ अगेन रन दिस प्रोग्राम. व्हाट इज दिस? फर्स्ट पहले मैंने कॉन्स्ट फ्लोट पाई 3.14 डिक्लेयर किया एंड उसकी वैल्यू प्रिंट करके देखी, तो इट इज प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन दैट इज 3.14. बट आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस पाई, है ना, टू 2. आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस पाई वैल्यू टू 2. ठीक है, बट चेंज होता है क्या? देखो कांस्टेंट की वैल्यू. ठीक है, नाउ हियर एरर इज देयर. व्हाट दिस एरर से? एरर असाइनिंग ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई. रीड ओनली वेरिएबल पाई pi विच इज इक्वल्स टू 2 के यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाया उसने लाइन नंबर 15 के ऊपर. व्हाट इट मीनिंग्स? व्हाट इट मीन्स कि तुम लोग जो अभी भी कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो इनसाइड अ प्रोग्राम यूजिंग द कांस्ट कीवर्ड, you cannot change the value of that particular variable. Okay, so that's why it is showing the error message there. What is error? Assigning of the read only variable pi. Clear this point, all of you? Now we will take next example. Okay, what is next example? Write a program to print the integer number. Okay, write a program to print the integer number. Okay, अब फिर से हम लोग कोरिलेट करते हैं सेम प्रोग्राम के लिए with the 4 stages. What are the 4 stages?
कैन एनीवन टेल मी? अनम्यूट करके भी बता सकते हो. व्हाट आर द 4 स्टेजेस? Input, output, processing and Yes. memory. है ना? सो आई एम डिक्लेयरिंग वन नंबर. इंटीजर नंबर लेना है ना और प्रिंट करना है. और आई थिंक इंटीजर नंबर हम लोगों ने लिया है. सो आई विल टेक द इनपुट एज फ्लोट डिक्लेयर करती हूँ. फ्लोट एक नंबर डिक्लेयर करती हूँ. ठीक है, ए या फिर नंबर एंड देन सेमीकोलन. ओके, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू प्रिंट दिस वैल्यू. ठीक है, सो व्हाट टू राइट इनसाइड अ प्रिंट स्टेटमेंट? क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इंस्टेड ऑफ पाई वैल्यू फ्लोट नंबर इज. ओके, और फ्लोट है इसलिए मैंने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया? %f. और यहां पे क्या टाइप करना पड़ेगा मुझे? व्हाट इज द वेरिएबल नेम? वेरिएबल का नाम क्या है मेरा? नंबर, है ना? सो आई नीड टू टाइप नंबर देयर. ओके, अब वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है उसके लिए वैल्यू मैंने ली है ये? नहीं. सो आई एम टेकिंग द वैल्यू नंबर विच इज इक्वल्स टू 1.2. 1.2 डिक्लेयर किया एंड गिव द सेमीकोलन देयर. ओके, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं मोबाइल पे परफॉर्म कर रही हूँ तो तुमको पूरी स्क्रीन नहीं दिखेगी. ठीक है, सो इंटीजर फ्लोट नंबर डिक्लेयर किया, नंबर विच इज इक्वल टू 1.2 असाइन किया हम लोगों ने एंड प्रिंट किया फ्लोट नंबर इज %f एंड नंबर. ठीक है, रन दिस प्रोग्राम. प्रेस द ग्रीन कलर बटन and you will get the output. Float number is 1.2. ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्लोट नंबर इज 1.2 और उसके बाद बहुत सारे डॉट के बाद 00 लिख के आए हैं 2 के बाद. यस, अगर उसको मुझे 2 डिजिट में करना है या फिर 1 डिजिट में करना है तो मैं क्या लिखूंगी? % के बाद तुम लोगों को .2 लिखना है. व्हाट टू राइट? You have to write float number is %.2f. ठीक है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट को डिस्प्ले करेगा. Run this program and you can see the output. What is? Float number is 1.20. अब सारे जीरो चले गए. Whatever the zero are there after 2, वो सारे जीरो चले गए. सिर्फ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट हम लोगों को दिख रहे. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस वन. बिकॉज ऑफ दिस वन. फ्लोट नंबर इज %.2. 0.2 का मतलब क्या है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट डिस्प्ले करना. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग उसको वेरी कर सकते हो. ठीक है, सो ये हो गया. नेक्स्ट दैट इज नेक्स्ट प्रोग्राम. क्लियर दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes. Okay. Next program is same. Write a program to print the integer number or you can say float point number and accept the value from the user. अब तुम लोग बताओगे कि कैसे करना है इसको. मैं सिर्फ टाइप करती जाऊंगी. Write a program to print integer number, accept the value from the user कहा है मैंने. चलो बताओ एक एक. अनम्यूट करके बताओ because I cannot see the chat box. पहले तो कौन सा नंबर लेंगे तुम लोग? डिक्लेयर क्या करोगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? क्या डिक्लेयर करना है मुझे? यस, इंटीजर नंबर, है ना? इंटीजर नंबर.
इंटीजर नंबर डिक्लेयर किया। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या आएगा, printf inside a double quote enter क्या हो रहा है ये परफेक्ट, एंटर दी वैल्यू ऑफ नंबर। बहुत प्रॉब्लम चल रहा है मुझे ये। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट टू डू, नेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट आएगा मेरा, ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, कैन एनीवन टेल मी? What is next statement? Scanf. So write down scanf. Scanf inside a bracket format specifier. What is the format specifier for this one? What is the format specifier? It is %f. And after that comma करके तुम लोगों को क्या करना है, ampersand वेरिएबल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ वेरिएबल, ओ सॉरी इंटीजर लिया तो %d चाहिए, हाँ इट शुड बी अ d, ampersand क्या चाहिए मुझे, नंबर। ओके ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद सेमीकोलन एंड delete this. Now instead of float what to write, integer number is, integer number is। उसके बाद क्या देना है, यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर, %d। ओके एंड आफ्टर दैट यहाँ पे व्हाट इज द वेरिएबल नेम, नंबर। ओके एंड सेमीकोलन। रन दिस प्रोग्राम। थोड़ा मोबाइल की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। And you can see the result. Enter the value for number, ठीक है। तो मैं कोई भी वैल्यू प्रिंट करती हूँ, सपोज 12 मैंने डाला, ठीक है, एंड आफ्टर दैट एंटर। सो इंट नंबर इज व्हाट, 12। सो इस तरीके से तुम लोग प्रोग्राम लिख सकते हो। पहले क्या करना है कि इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या आने वाला है, हम लोगों को आउटपुट क्या मिलने वाला था, नंबर की वैल्यू, ठीक है। और इनपुट कहाँ से लेने वाले थे हम लोग, यूजर से लेने वाले थे। यूजर से अगर मुझे इनपुट लेना है तो आई कैन यूज द स्कैनफ स्टेटमेंट देयर, ओके। सो ampersand नंबर इज देयर एंड आफ्टर दैट प्रिंटफ स्टेटमेंट फिर से मुझे यूज करना है, किस लिए, वो पर्टिकुलर वेरिएबल में क्या वैल्यू है उसको डिस्प्ले करने के लिए। तो आई एम यूजिंग व्हाट, प्रिंटफ स्टेटमेंट देयर, ठीक है। सो ये हो गया। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द इंटीजर नंबर, ठीक है।
सिंपल वे से भी किया और फ्रॉम द यूजर भी किया। अब दूसरा प्रोग्राम देखो, नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोग्राम? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर। कैसे करोगे इसको? कैन एनीवन टेल? चैट बॉक्स में डालो, मैं देखती हूँ तुम लोग कितना समझ पा रहे हो। क्या करना पड़ेगा मुझे? हॉटस्पॉट मेरे यहाँ का काम नहीं करता सोहम, मेरे मोबाइल का, इसीलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ लैपटॉप से। आ जाएगी, आज ही कैसे क्या गई पता नहीं। ओके, यूएसबी टिथरिंग से ट्राई कर सकते हैं। आई विल चेक दैट वन। तब तक मुझे बताओ, सम ऑफ नंबर के लिए जो 4 स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर है उसके लिए क्या लेना पड़ेगा मुझे? 4 स्टेप्स बताई थी ना मैंने। यू हैव टू टाइप इनसाइड अ चैट बॉक्स। प्रोसेसिंग हो गया, बट क्या लोगे? अभी जितना समझ में आया उसके अकॉर्डिंगली बताओ। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? यू कैन टाइप इनसाइड द चैट बॉक्स। 2 इनपुट लेने पड़ेंगे, यस और नो? नंबर 1 नंबर 2, है ना? उसके बाद और एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू? वो पर्टिकुलर 2 नंबर का रिजल्ट स्टोर करने के लिए, है ना? क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर। ओके, सो you have to use what? 2 numbers and 1 number is there for what? To store the result. Two input, कृष्णा ने टाइप किया है, 2 inputs are there, new variable for storing the result of operation and then print a new number. सुचिता मॅम, म्यूटवर आहात का तुम्ही? सुचिता मॅम,
Yes. हाँ यस Madam is on mute. ओके ओके Okay, okay. मैम लाइट गई ना यहाँ पे, इसी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। Okay, okay, ma'am. तो कहाँ पे थे? इंटीजर टाइप हम लोगों को क्या करना है? वी आर टेकिंग व्हाट, टू नंबर्स लेने हैं, टू नंबर की सम कैलकुलेट करनी है, वो हम लोगों को थर्ड वेरिएबल में स्टोर करनी है। एंड फॉर दिस पर्पज इनपुट रिक्वायर्ड इज व्हाट, टू नंबर, और एक नंबर, एक जो हम लोगों को वेरिएबल लगेगा वो सम स्टोर करने के लिए लगेगा। ठीक है, सो आई एम टेकिंग व्हाट, नंबर वन नंबर टू, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है सब लोगों को, इंटीजर टाइप नंबर वन नंबर टू एंड कॉमा सम, ये तीन वेरिएबल लिए मैंने। सो नंबर वन विच इज इक्वल टू 3 हम लोगों ने लिखा, देन प्रोवाइड द सेमी कोलन देयर। आफ्टर दैट फिर से मैं नंबर टू की वैल्यू लूंगी विच इज इक्वल टू, सपोज मैं 5 लेती हूँ, आई वॉन्ट टू एड 3 + 5 कितना होता है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट, यू नीड टू सम, यू नीड टू कैलकुलेट द सम। तो सम के लिए क्या लिखूंगी, SUM सम, जो वेरिएबल का नाम है, विच इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू एंड सेमीकोलन। ठीक है, ये कंपलसरी है, हाँ सेमीकोलन देना कंपलसरी है। ठीक है, और फिलहाल के लिए मैं ये दो लाइंस को कमेंट करती हूँ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट जो है ना, ये पार्ट नहीं है। सो व्हाट इज देयर, इंटीजर नंबर वन नंबर टू कॉमा सम इज देयर, नंबर वन विच इज इक्वल टू 3 असाइन किया मैंने, नंबर टू इक्वल टू 5 असाइन किया, मतलब 5 वैल्यू नंबर टू में स्टोर की, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज इट, सम की नंबर वन एंड नंबर टू, एंड आई वांट टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ सम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट है, प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या लिखूंगी मैं, सम ऑफ टू नंबर इज परसेंट डी। यहाँ पे क्या लिखना है नंबर की जगह, किसमें रिजल्ट है मेरा, सम नाम के वेरिएबल में, तो यू हैव टू प्रिंट सम देयर। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हाँ देखो जैसे मोबाइल में टाइप कर रही हूँ, इसकी वजह से वहां पे बार बार एरो आ रहा है ना, उसकी वजह से कुछ अलग ही टाइप हो रहा है। ठीक है, सो ये हो गया कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर, नंबर वन लिया नंबर टू लिया, सब नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, और हाउ टू कैलकुलेट, दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, नंबर वन प्लस नंबर टू जो लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन टू ऐड द टू नंबर, और इसका जो रिजल्ट है वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। ठीक है, नाउ रन दिस प्रोग्राम। The sum of two number, see on the screen what is there, what is written, sum of two number is 8। yes, अब यही अगर मुझे सेम सम है बट मुझे यूजर से लेनी है, ठीक है, आई नीड टू टेक द सेम वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ये था प्री डिफाइंड, हम लोगों ने किया था, नंबर वन और नंबर थ्री को डायरेक्टली वैल्यू असाइन की थी, बट यही चीज अगर मुझे किससे करनी है, टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, क्या करूंगी फिर मैं, फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट, एंटर द वैल्यू फॉर फर्स्ट नंबर, है ना, उसके बाद स्कैनफ स्टेटमेंट, ये हो गया एक नंबर के लिए, अगेन सेकेंड नंबर के लिए प्रिंटफ एंटर द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, ओके, एंड आफ्टर दैट स्कैनफ स्टेटमेंट परसेंट डी के साथ नंबर टू। ठीक है, तो वो करके देखते हैं हम लोग, डिलीट दिस वन,
क्या करना है मुझे? यूजर से एक्सेप्ट करनी है वैल्यू. सो इंटीजर टाइप व्हाट शुड राइट? इन टाइप नंबर कॉमा नंबर 2. नंबर 2. नंबर 1 टाइप किया, नंबर 2 टाइप किया एंड देन सेमीकोलन. फिर से एक और वेरिएबल रह गया किसके लिए? सम के लिए. सो यू हैव टू यूज सम देयर. ओके. ये सारे प्रोग्राम मैं बाद में तुम लोगों को मेल करने वाली हूँ, व्हाट्सएप पे देने वाली हूँ, तो तुम लोग तुम्हारे एंड पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हो. ठीक है. सो व्हाट इज देयर? इंटीजर नंबर 1 नंबर 2 और सम लिया एंड ये वैल्यू जो है नंबर की हम लोगों को कहाँ से एक्सेप्ट करनी? आई वांट टू एक्सेप्ट दिस वैल्यू फ्रॉम द यूजर. सो यू हैव टू टाइप व्हाट इज देयर? प्रिंट स्टेटमेंट. printf, yes, inside a bracket, in a double quote, what to write? Enter number 1. Number 1. After that, what to write? Next, scanf statement. Scanf, scanf. Inside a double quotes, you have to type what is there? कौन से टाइप का है ये? इंटीजर टाइप का नंबर 1. तो यू हैव टू टाइप व्हाट इज देयर? परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी. ओके. एंड कॉमा what should be there? Ampersand number 1. Okay. After that, provide the semicolon. ये हो गया फर्स्ट. ओके. सेम हम लोगों को करना है फॉर सेकेंड नंबर. printf inside a bracket double quotes enter number 2. ठीक है. नंबर 2 then semicolon. Okay. After that, scanf inside a bracket in a double quotes you have to write what is there? Percent d. परसेंट डी कॉमा एम परसेंट किसमें है? सेकेंड नंबर 2 के अंदर. ओके. आफ्टर दैट प्रोवाइड अ सेमीकोलन. उसके बाद सम विच इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना है? सम विच इज इक्वल टू सिमिलरली नंबर 1 प्लस नंबर 2 एंड सेमीकोलन. ठीक है. तो ये हो गया accept the value to calculate the sum of two numbers and accept the value from the user. देखो पहले जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो क्या हो गए? स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गए. उसके बाद स्कैनफ से हम लोग इनपुट लेंगे नंबर 1 के लिए. प्रिंटफ सेकंड जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर एंड स्कैनफ से हम लोग इनपुट लेंगे सम विच इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 एंड फिर से हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट करना है. क्या प्रिंट करना है? सम इज. कैसे लिखूंगी? सम इज. सम इज
इक्वल्स टू परसेंट, किस में स्टोर होने वाली है सम मेरी, इंटीजर टाइप है सम, तो परसेंट डी शुड बी देयर, परसेंट डी, एंड आफ्टर दैट कॉमा करके किस में है सम, SUM, सम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। सो आफ्टरवर्ड run this program and see the output, enter the number 1, ठीक है। यहाँ पे मुझे वैल्यू डालनी है यूजर से, 23 डालती हूँ मैं, सो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट 23, ठीक है। उसके बाद एंटर, उसके बाद यहाँ पे फिर से पूछा है, देखो ई यहाँ पे 2 बार लिख के आया, क्यों, वहां पे डबल कोट्स में मैंने ई 2 टाइम्स लिखा है इसलिए, ठीक है। दिस इज व्हाट एंटर द नंबर 2, अब यहाँ पे नंबर 2 की वैल्यू एंटर करो, सपोज मैं डालती हूँ 10 एंड एंटर, सो आई विल गेट द रिजल्ट हियर, सी what is enter the number 1 is 23, enter number 2 is 10 and the sum is what 33, ठीक है। so this is all about what is there, how to accept the value from the user, okay। now ये 2-3 प्रोग्राम्स हैं, बाकी सारे प्रोग्राम्स मैं मेल करती हूँ आप लोगों को, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। आप आपके एंड पे एग्जीक्यूट करके देखो सारे। Hello, ma'am. हाँ बोलो ना बेटा। Ma'am, can you show me the sum wala part again, please? ओके ओके, वेट अ मिनट, वो थोड़ा मोबाइल के ऊपर है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सो दिस वन देख रहे Yes. Yes, ma'am. हैं, ओके। करना है, कुछ लोग कर रहे हैं क्या तुम्हारे एंड पे? Yes, ma'am. I was doing it, so. ओके, और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता अगर मैं ये सारी चीजें डेस्कटॉप पे समझाती ना, तो अगर तुम लोगों की इच्छा अगर होगी, अगर लाइट आती है तो हम लोग बाद में इसको कर सकते हैं। हो गया? Yes, ma'am. You can proceed. Thank you. ओके, तो समझ में आया यहाँ तक? यस, पुट इनसाइड अ चैट बॉक्स। ओके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। अब ये प्रोग्राम्स अगर लाइट आती है तो मैं तुम लोगों को बाद में फटाफट एग्जीक्यूट करके बताऊंगी। दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर, एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। ये यहाँ तक हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट प्रोग्राम था हमारा राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज के लिए मुझे और एक 4th नंबर का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना, और उसमें एवरेज स्टोर करना पड़ेगा 2 नंबर का। तो प्रोसेसिंग पार्ट क्या है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 डिवाइड बाय 2 आना चाहिए। तो हम लोगों ने नंबर 1 प्लस नंबर 2 एक्चुअली सम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, यस और नो। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज विच इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 2, इस तरीके से उसका प्रोसेसिंग पार्ट रहेगा, ठीक है। अगर लाइट आती है तो ये सारे प्रोग्राम में कवर करती हूँ बाद में, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल? यस, पौर्णिमा मॅडम स्क्रीन आहे का विजिबल? हो मॅडम. मॅडम काही मध्ये झाला प्रॉब्लेम तर सांगत जा, माझा आवाज नसला किंवा मग स्क्रीन विजिबल नसली तर समजून घ्या, लाईट गेलेली आहे त्याच्यामुळे बघ 20%च बॅटरी आहे माझ्या ह्याच्यामध्ये, ठीक आहे। सो कंडिशनल स्टेटमेंट इज व्हाट, स्क्रीन इज विजिबल मॅडम. कंडिशनल स्टेटमेंट इज व्हाट, इफ स्टेटमेंट इज देयर, ठीक है।
What if statement? An if statement is executed when the boolean expression is true. ठीक है. What is boolean expression? अब तुम लोगों को पता boolean expression मतलब क्या है? Boolean expression मतलब इसके दो पार्ट रहते हैं, ओनली ट्रू और फॉल्स. ठीक है. इट इज बुलियन एक्सप्रेशन इज डिपेंड ऑन व्हाट, ट्रू एंड फॉल्स. मतलब ये कंडीशनल पार्ट रहता है. ट्रू मतलब 1 एंड फॉल्स मतलब 0. यू कैन कीप इन माइंड व्हाट इज ट्रू. ट्रू मतलब हमारा 1 है और फॉल्स मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 0. ठीक है. तो इफ स्टेटमेंट बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर वर्कआउट होता है. ठीक है. सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस? यू हैव टू टाइप इन अ स्मॉल लेटर इफ. देखो सिंटैक्स देखो यहाँ पे. What is the syntax? If is there inside a bracket. What is there? Text expression. Test expression is there. और टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब क्या है? ये तुम लेस देन साइन या फिर ग्रेटर देन साइन या फिर इक्वल्स टू, इस तरीके से तुम लोग दे सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो. ठीक है. आफ्टर दैट curly bracket start, curly bracket end, and inside the curly brackets, this curly brackets, this brackets are there. इफ टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद देखो ब्रैकेट्स आर देयर, है ना. सो ये ब्रैकेट को क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स इज देयर. ठीक है. सो कर्ली ब्रैकेट के अंदर तुम लोगों को क्या लिखना है? स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, है ना. स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू. ठीक है. अब मैंने क्या कहा था तुम लोगों को? इफ स्टेटमेंट किसके ऊपर वर्क करता है? ओनली ट्रू वैल्यू या फिर फॉल्स वैल्यू, है ना. तो इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है? जब मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी. ठीक है. मतलब ही जो आपको राउंड ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर है लिखा टेस्ट एक्सप्रेशन. इसकी वैल्यू अगर मेरी ट्रू रहती है तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर के एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द इफ स्टेटमेंट. नाउ ये क्लियर है कि कैसे वर्क होता है? ट्रू और फॉल्स वैल्यू समझ में आई? बुलियन एक्सप्रेशन समझ में आया? ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द डायग्राम ऑफ दिस. ठीक है. डायग्राम ऑफ इफ. डायमंड बॉक्स दिख रहा है तुम लोगों को, है ना. दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द फ्लो चार्ट. कि कैसे फ्लो होता है प्रोग्राम का. फ्लो मतलब क्या? किस तरीके से तुम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो. सीरियली करते हो या फिर कहीं एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली जंप करते हो. ठीक है. इट्स लाइक व्हाट? अगर तुम लोग रास्ते पे चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, तो देयर आर मेनी वेज टू वॉक ऑन द रोड, है ना. एक तो तुम सीधे चलोगे या फिर जिगजैग चलोगे. यस और नो? सिमिलरली यहाँ पे भी जो भी हम लोग कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट देते हैं, एक तो ये सिक्वेंशियल रहते, मतलब ही सीरियल रहते, लाइक अ स्ट्रेट वॉक, या फिर जिगजैग नहीं कह सकते, डायरेक्टली जंप करके जाना है या फिर तुम लोग जिगजैग मोमेंट में जाओगे. इस तरीके से स्टेटमेंट रहते हैं. इट इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करें? यू आर चेकिंग व्हाट? द कंडीशन. ओके. नाउ वी आर टेस्टिंग कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है. ठीक है. सो डायमंड बॉक्स में हमारी कंडीशन रहेगी. ठीक है. कंडीशन ट्रू, देन इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड. ओके. एंड अगर फॉल्स है कंडीशन तो हम लोग डायरेक्टली आउट ऑफ द लूप आएंगे. देखो फॉल्स का एरो कहाँ जा रहा है? इफ ब्लॉक के बाद जा रहा है. ठीक है. उसको और प्रॉपर वे से समझने के लिए ये मेरे पास प्रोग्राम है. पहले एक्सप्रेशन इज ट्रू के लिए लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे इन टेस्ट विच इज इक्वल टू 5 लिया है. व्हाट इज दिस? एक टेस्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू 5 है. ओके. सो वी आर चेकिंग व्हाट इज देयर इफ इनसाइड द ब्रैकेट टेस्ट इज लेस देन 10. अब टेस्ट में वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू इनसाइड द टेस्ट? ऊपर देखो, ऊपर वाला स्टेटमेंट, टेस्ट विच इज इक्वल टू 5 हम लोगों ने डिक्लेयर किया है. मतलब टेस्ट की वैल्यू अल्टीमेटली क्या है? 5. सो 5 इज लेस देन 10. 5 लेस देन 10. क्या आएगा इसका रिजल्ट? कैन एनीबॉडी टेल मी? 5 लेस देन 10 ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? यस.
ट्रू, यस, बिकॉज 5 लेस है 10 से, तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, देखो एरो, एरो कहाँ पे दिख रहा है, कोड, इनसाइड व्हाट, करली ब्रैकेट्स, ओके, सो दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन इज ट्रू, ठीक है। अब एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होता है, ये सिंपल इफ है, ओनली इफ स्टेटमेंट इज देयर, नाउ सी दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स अगर है तो, टेस्ट विच इज इक्वल टू 5 एंड हम लोगों ने कंडीशन लगाई है, दूसरी कंडीशन लगाई है, दैट इज टेस्ट इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, टेस्ट इज ग्रेटर देन 10, टेस्ट की वैल्यू क्या है 5, 5 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू है कि फॉल्स है, ऑडियो वाइज रिप्लाई दो प्लीज, फॉल्स है ना, तो कहाँ पे जा रहा है हमारा एरो, देखो ये करली ब्रैकेट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, नहीं, इट इज गोइंग आउटसाइड, है ना, दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम व्हेनेवर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, है ना, तो ये दोनों वे से यहाँ पे डिस्प्ले है, टेस्ट इक्वल टू 5, पहले के कंडीशन में हम लोगों ने लेस देन साइन यूज किया है, दूसरे का एग्जाम्पल में ग्रेटर देन साइन यूज किया है, मतलब एक बार कंडीशन मेरी ट्रू थी और दूसरे टाइम फॉल्स थी, क्लियर दिस पॉइंट, कैन आई एग्जीक्यूट दिस वन, यस ऑल ऑफ यू क्लियर, मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तुम लोगों को, ओके, नाउ फिर से कहाँ पे जाना है, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम पे हमारा ये जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं ऑनलाइन एडिटर के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेती हूँ इंटीजर नंबर करके ही एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, फिर मैं ये डिलीट करती हूँ सारी चीजें, सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल का नाम है नंबर 1 रहेगा और आई एम गोइंग टू चेक दैट नंबर ग्रेटर देन 10 है कि नहीं, है ना, आई एम डिलीटिंग ऑल दिस थिंग, डिक्लेयरिंग नंबर 1 विच इज इक्वल्स टू, मैंने 5 डिक्लेयर किया, सेम एग्जांपल वहां पे जो था वही एग्जांपल ले रहे, ठीक है, इन नंबर इक्वल्स टू 5, उसके बाद नेक्स्ट क्या चेक करना है मुझे, इफ, ओके, इनसाइड अ राउंड ब्रैकेट, दिस राउंड ब्रैकेट शुड बी देयर, ओके, ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स में कोई भी चेंज नहीं हो सकता, कॉमा है एज इट इज लिखना है, करली ब्रैकेट है एज इट इज लिखने हैं, है ना, सिंटैक्स तुम लोगों को याद करने हैं क्योंकि दिस इज अ रूल, वो रूल के अकॉर्डिंगली हम लोगों को चलना है, उसके अलावा हम लोग अपने खुद के रूल नहीं लिख सकते, ठीक है, सो आई एम चेकिंग व्हाट इज इट, नंबर 1 क्या है, ग्रेटर देन 10 है क्या, ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा सिंटैक्स, करली ब्रैकेट, देखो यहाँ पे 7 नंबर के नीचे करली ब्रैकेट्स है ना, तो यू हैव टू टाइप करली ब्रैकेट, ठीक है, और करली ब्रैकेट एंड, ठीक है, करली ब्रैकेट्स का करली ब्रैकेट एंड के अंदर ही हम लोगों को कोड लिखना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ओके, सो आई एम चेकिंग व्हाट इज देयर, सॉरी ये फॉल्स का कंडीशन हो गया ना, ये लेस देन लेना पड़ेगा, वेदर दैट पर्टिकुलर नंबर इज लेस देन 10 है कि नहीं, कंडीशन यहाँ पे चेंज की, ठीक है, सो मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, हम लोगों को कोई मैसेज प्रिंट करना है, तो मैसेज क्या प्रिंट करूंगे मैं कि यस नंबर इज लेस देन, यहाँ पे सिर्फ मैसेज प्रिंट करने वाली हूँ, नंबर नंबर इज स्पेस लेस देन 10, ठीक है,
बाकी कुछ नहीं लिखना है मुझे, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करना है कि नंबर लेस देन क्या है 10. सो वी विल सी द कोड. देखो प्रोग्राम क्या लिखा, इंटीजर नंबर विच इज इक्वल टू 5 इफ नंबर इज लेस देन 10 है क्या, है ना. सो कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि नंबर की वैल्यू 5 है. एंड क्या प्रिंट करना है मुझे, प्रिंट नंबर इज लेस देन 10. ठीक है, रन करो इसको. हाउ टू रन, नाउ सी द आउटपुट इज व्हाट, नंबर इज लेस देन 10. ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं. इसमें से सिर्फ हम लोगों ने इफ पार्ट देखा है. ठीक है, कोई भी अगर हम लोगों को कंडीशन देनी है इनसाइड अ प्रोग्राम, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल तुम लोगों को बताती हूँ कि सपोज फ्रेंड्स एक बर्थडे पार्टी है. ठीक है, राम इज देयर. ठीक है, राम की बर्थडे पार्टी है और अथर्व इज देयर. अथर्व वांट्स टू गो टू राम पार्टी, बर्थडे पार्टी. ठीक है, एक विवेक है, तो अथर्व किसको पूछेगा, विवेक को पूछेगा कि आर यू कमिंग विथ मी फॉर द बर्थडे पार्टी. तो उसका क्या आंसर रहेगा, एक तो यस या फिर नो, है ना. विवेक का आंसर क्या रहेगा, यस और नो. तो हम लोग यहाँ पे उस तरीके की कंडीशन दे सकते हैं. ठीक है, कि बर्थडे पार्टी इज देयर और फिर ये कंडीशन देंगे. कंडीशन में क्या लिखेंगे, आर यू गोइंग फॉर द बर्थडे पार्टी. ठीक है, यस अगर रहा तो प्रिंटफ में रहेगा यस आई एम कमिंग. इस तरीके से तुम लोग दे सकते हो. ये रियल टाइम एग्जांपल बताया सिर्फ मैंने. यस, सो दिस इज लाइक अ इफ स्टेटमेंट कि अगर कोई जजमेंटल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसको हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है, तो वी आर हैविंग व्हाट इज देयर, इफ. क्लियर दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू. कैन आई प्रोसीड नेक्स्ट, इफ एल्स पे जाए. ये लास्ट टॉपिक है इफ एल्स वाला पार्ट. ओके, this is today's last topic. What is if else statement says? An if statement can be allowed by an optional else statement. ठीक है, अब पहले के कंडीशन में क्या था कि अगर मेरी if कंडीशन ट्रू रहती है तो मैं सिर्फ इनसाइड ब्रैकेट, जो करली ब्रैकेट है उसमें जंप कर सकती थी और वहां पे प्रोग्राम जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करना था मुझे, इफ द कंडीशन इज ट्रू. ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स रहती है तो हम लोग डायरेक्टली ऑटोमेटिक आउट ऑफ द लूप, मतलब आउट ऑफ द ब्रैकेट्स आते थे, दैट पर्टिकुलर करली ब्रैकेट्स. ओके, बट इफ के साथ एल्स भी है, मतलब सी लैंग्वेज में और एक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है टू चेक अ कंडीशन, दैट इज इफ एंड उसके साथ एल्स. ये नहीं होगा तो ये होगा. ठीक है, सेम बर्थडे पार्टी का एग्जांपल, एक तो वो जाएगा बर्थडे पार्टी में, विवेक एक तो बर्थडे पार्टी में जाएगा या फिर नहीं जाएगा. तो ये दो स्टेट्स हो गए मेरे. ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस व्हाट इज यू हैव टू राइट, इफ, व्हाट इज द सिंटैक्स, इफ इनसाइड अ ब्रैकेट टेस्ट एक्सप्रेशन देना है. ठीक है, और आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तुम लोगों को एक्सप्रेशन लिखना है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट. ओके, उसके बाद ये कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी. ठीक है, एंड एल्स वाला पार्ट, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इट विल एग्जीक्यूट द एल्स पार्ट. कैसे लिखना है, करली ब्रैकेट के नीचे यू हैव टू राइट एल्स. ओके, एंड आफ्टर दैट अगेन करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड के अंदर तुम लोगों को एक्सप्रेशन लिखने. ओके, हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं. वी विल सी हियर डायग्रामेटिकली. ठीक है, diagram of if else. See this condition. Okay, condition के बाद यहाँ पे if the condition is true, arrow देखो कहाँ पे जा रहा है, code inside a if block वो execute होगा. ठीक है, if this condition diamond box is there, diamond में condition false है, जो भी condition दी है वो अगर false है तो वो कहाँ पे जा रहा है arrow, code inside a else block. ठीक है, so this is true, तो if एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स अगर है तो एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है. एंड आउट ऑफ
उसके बाद बाहर निकल रहा है इस स्टेटमेंट से, ठीक है। नाउ उसका वर्किंग यहाँ पे समझ लेते हैं, सेम जो प्रीवियसली हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, ठीक है। सो वर्किंग ऑफ इफ एल्स इज दैट इंटीजर टेस्ट विच इज इक्वल टू 5 डिक्लेयर किया, इफ वी आर टेस्टिंग व्हाट इज दैट लेस देन 10 है क्या, ठीक है। लेस देन 10 है तो फिर से मुझे प्रिंटफ स्टेटमेंट लेना है, इनसाइड दिस करली ब्रैकेट आई हैव टू राइट व्हाट इज देयर, क्या लिखना है मुझे, प्रिंटफ नंबर इज लेस देन 10, है ना, मतलब टेस्ट इज व्हाट लेस देन 10, एल्स यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नंबर इज नॉट लेस देन 10, है ना, दूसरी कंडीशन आ सकती है इट इज नॉट लेस देन 10, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ पे एरो देखो कहाँ पे जा रहे हैं, कंडीशन अगर ये ट्रू होती है तो एरो कहाँ पे जा रहा है मेरा, करली ब्रैकेट, फर्स्ट इफ के बाद वाला करली ब्रैकेट, ठीक है। ये खत्म होने के बाद डायरेक्टली वो जंप करके आउटसाइड आ रहे हैं, सेकंड वाला एरो देखो आउटसाइड आ रहे हैं, है ना, मतलब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा वहां पे, क्योंकि ट्रू जब होगा कोई भी चीज जो है हम लोग ट्रू या फिर फॉल्स, एक तो ट्रू रहेगी या फिर फॉल्स रहेगी, है ना। सो ट्रू के वक्त सिर्फ इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स के वक्त एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखो, हियर यू कैन सी द सेकंड एग्जांपल देयर, एक्सप्रेशन फॉल्स अगर है तो अब देखो एरो फिर से देखो, इफ टेस्ट इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन फॉल्स होने वाली है क्योंकि टेस्ट की वैल्यू 5 है, तो कहाँ पे जा रहे हैं एरो, एल्स ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, एंड यहाँ पे आउटसाइड आ रहे हैं, एल्स ब्लॉक से आउटसाइड आ रहे हैं, ठीक है। दोनों क्लियर है पॉइंट, कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना है, क्लियर दिस वन, यस, यू कैन टाइप इनसाइड द चैट बॉक्स। अब इसके ऊपर का एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट में से क्या लिखना है यहाँ पे, इफ एल्स ब्लॉक में सेम एग्जाम्पल, नंबर इक्वल्स टू 5 लिया, नंबर लेस देन 10 है क्या चेक करें और प्रिंट कर रहे मैसेज, अगर नहीं हो अगर होगा तो नंबर इज लेस देन 10, तो एल्स पार्ट मुझे क्या लिखना है, व्हाट टू राइट इन एल्स पार्ट, एल्स, this is again the keyword is there, else you have to type curly brackets, okay, inside a curly bracket दूसरा मैं मैसेज प्रिंट करूंगी, print f in a double quotes, what to type, number is not less than 10, क्या क्या टाइप हो क्या रहे, ठीक है, सिर्फ इतना ही टाइप करना है मुझे। दो स्टेटमेंट एल्स के हम लोगों ने लिए, फर्स्ट व्हाट इज है, printf नंबर इज लेस देन, नंबर लेस देन 10 है क्या, तो मैं क्या प्रिंट कर रही हूं, यहां पे प्रिंट क्या कर रही हूं, नंबर इज लेस देन 10, एल्स पार्ट में क्या लिखा है मैंने, नंबर इज नॉट लेस देन, इज नॉट लेस देन रह गया लिखना, ओके, नंबर इज नॉट लेस देन 10, यू कैन सी द प्रोग्राम, ठीक है।
इंटीजर नंबर 5 लिया, नंबर लेस देन 10 लिया, प्रिंट नंबर इज लेस देन 10, एल्स प्रिंट एफ नंबर इज नॉट लेस देन 10 एंड रिटर्न. रन दिस प्रोग्राम. क्या आया एरर? एक्सपेक्टेड 22 नंबर की लाइन पे. देखो दिस इज कॉल्ड द एरर. क्या मिस किया मैंने? 22 नंबर की लाइन देखो. ये 22 नंबर, 22 नंबर की लाइन पे कोई एरर नहीं है. उसके ऊपर एक तो एरर हो सकती है या फिर नीचे. यहाँ पे मैंने सेमीकोलन मिसिंग था मेरा. ठीक है. नाउ फिर से रन करो प्रोग्राम. रन दिस प्रोग्राम. देखो नंबर इज लेस देन 10 लिखा है क्योंकि हम लोगों के नंबर की वैल्यू क्या थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर? 5. अब मैं यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करके दिखाती हूँ, मतलब ग्रेटर देन लिखते हैं. ठीक है. ग्रेटर देन. यहाँ पे सिर्फ मैंने इफ नंबर 1 ग्रेटर देन 10 ये कंडीशन मैंने टेस्ट की. ठीक है. अब क्या होगी? कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10. तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए? यस. कैन एनीवन रिप्लाई? ऑडियो वाइज रिप्लाई कर सकते हो. कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए और क्या लिख के आना चाहिए? यस. नंबर इज नॉट लेस देन 5, है ना? सो वी विल रन दिस वन. देखो क्या लिख के आया? नंबर इज नॉट लेस देन 10. यस. मतलब हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ अभी कंडीशन फॉल्स होने के बाद? एल्स वाला ब्लॉक. ठीक है. इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट नंबर इज लेस देन 10 एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट लेस देन 10. है ना? यस. अंडरस्टूड दिस पार्ट? अटेंडेंस के लिए मैं तुम लोगों को लिंक शेयर करूंगी. उसी के ऊपर कल जैसे ही लिंक शेयर करूंगी उसके ऊपर अटेंडेंस देना है तुम लोगों को. ठीक है. और आज मुझे एक्चुअली बहुत सारा पार्ट तुम लोगों का कवर करना था, वो रह गया. प्रैक्टिकल्स लाइट ना होने के कारण डेस्कटॉप पे वो अच्छे से समझ में आता है. क्लियर? ओके. आई थिंक we will stop here. Thank you all. अटेंडेंस लिंक आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजती हूँ. वहां पे जाके तुम लोग अटेंडेंस दोगे आज की. ठीक है. थोड़ा लाइट नहीं है तो शाम तक भेजूंगी मैं 5 बजे तक. You can leave the meeting. आज का प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप करूंगी, उसके ऊपर तुम लोग एग्जीक्यूट करके देख सकते हो. हेलो गौरव. हाँ गौरव. मॅम. हाँ मॅम. हा. मीटिंग एंड केली तरी चालेल, आज खूपच प्रॉब्लेम झाला रे. ओके. हाँ मॅम ठीक आहे. रेकॉर्डिंग स्टॉप नाही होत आता. रेकॉर्डिंग कशी स्टॉप करायची? मोबाईल फोनवरून रेकॉर्डिंग स्टॉप नाही होत. तुझ्या इकडून होती का बघ बरं रेकॉर्डिंग मी स्टॉप. इथून तुम्हाला लिव्ह करू शकतो, रिमूव्ह करू शकतो, मग त्यानंतर होऊन जाईल.
मला नाही वाटत कारण कनेक्ट राहता. ठीक आहे, मीटिंग एंड केल्यानंतर बघू. मीटिंग एंड तर करू. ओके. हं, ठीक आहे.